Hello, welcome back to the channel for pharmaceutical development and research. So I'm again back with one more chapter, and as you know, yesterday we discussed about how a generic product comes into the market, or what is the work we do in generic market. Now from here onwards, moving with the series, uh, we will now start working towards about how the project is selected and how we start the developmental activity, how we proceed slowly. So this will be taking a long time, and I will be covering daily 15 to 20 minutes for these lectures, and we will now start one by one. So before starting the actual developmental activity, first of all we'll discuss how a project comes into the R&D, or what is the reason behind that the project looking viable to be worked upon. That we will see. Of course, this is not something which is done by R&D, but there is a smaller part which is the responsibility of R&D to look into it. So for that part, I wanted to cover it. And thing is that I feel that everyone should know on what basis project is selected, because over the period of time I have realized that for selection of a project, a lot amount of work is done, and if that work is not done up to the mark, then there are chances of missing the timelines and all. So any R&D scientist should always be aware about how a product comes into the market, or how a product is selected suitable for making a generic version. Because if you know this, you will understand the timeline, you will respect the timelines, and you will follow the timelines, which is one of the most important aspect of formulation development. That you have to respect the timeline, because आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो लेकिन टाइम पर नहीं बने तो इट इज़ यूजलेस. तो उसके लिए फिर ये बहुत मैटर करता है कि आप जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो किस हिसाब से सेलेक्ट करते हो, वाइबल है या नहीं है, ये सभी साइंटिस्ट को पता होना चाहिए. तो बेसिकली प्रोजेक्ट सेलेक्टेड बाय मार्केटिंग होता है, बट इसमें काफ़ी सारा रोल R&D टीम का भी रहता है सिलेक्शन के लिए, और वो रोल क्या होता है मैं आज के सीरीज में बताऊंगा. सो बेसिकली टुडे द लेक्चर, or today our topic for discussion is how a project is selected for generic development at R&D. So who selects the product for R&D? So basically the product is either selected by the business developmental team or the marketing team. They are the people who identify a suitable product for which we are planning to make a generic version. And how do they select the project? So the marketing team and the business developmental team, they do a lot of work in the US market. They try to understand the market dynamics. They try to understand what molecule is being prescribed and what is the most favorite molecule of the doctors, or what molecules is having a good sale. So basically any innovative product, when it comes into the market, and if it captures a good market, and if it is prescribed by the doctors, that project becomes, or that drug molecule or that dosage form becomes a good candidate for generic development. So first criteria is that the innovator, whichever is there in market, it should have a very good market. Means innovator should have a good market. So the innovator should of course have a good sales, क्योंकि अगर इनोवेटर ही अच्छा बिकेगा, अच्छा मार्केट होगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो ही उसका जेनरिक बना के फायदा है. अदरवाइज अगर इनोवेटर ही नहीं हो रहा है अच्छे से मार्केट, या अच्छे से नहीं बिक रहा है, तो देन देयर इज नो इंटरेस्ट. तो जो भी पहला क्राइटेरिया होता है, ये सेलेक्ट किया जाता है कि इसका प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट कैसा है, प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न कैसा है इनोवेटर का,
और वो कौन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, किस कैटेगरी में यूज होता है, मेडिसिन की कैटेगरी क्या आती है, वो कौन सा है, लाइफ सेविंग ड्रग है या रूटीन ड्रग है या एकदम ही कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला ड्रग है, ये डिटरमाइन करता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो डॉक्टर्स अच्छे से प्रिस्क्राइब करता रहे वो प्रोजेक्ट को। तो बेस्ड ऑन दैट सर्वे एंड ऑल जब ये समझ में आ जाता है कि इस प्रोडक्ट का गुड मार्केट है, यूजुअली ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका इनोवेटर का मार्केट ही बिलियंस में हो ये हो, तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर जेनेरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिकॉज अगर इनोवेटर अच्छा बिकेगा तो ही उसका कुछ शेयर आप ले पाओगे जेनेरिक में आके, एंड देन ओनली इट विल बी अ positive outcome for you, or it will give some good market value for you people. So that is the reason जो इनोवेटर अच्छा चल रहा है, डॉक्टर्स अच्छा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो पहले सेलेक्ट किया जाता है। वो सेलेक्ट करने के बाद में अगेन एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम अपना एनालिसिस से और अपना अंदाजे से, अंदाजा तो नहीं बोलेंगे बट देन दे आर स्किल्ड पीपल टू डू दैट एक्टिविटी। वो लोग ये अपना एक डिटरमाइन करते हैं कि इसका मार्केट कितना है और उस मार्केट में आगे क्या कंपटीशन है, उसका एक इवैल्यूएशन होता है। बिकॉज हो सकता है कि मार्केट बहुत अच्छा है लेकिन अगर उसमें फिर बहुत कंपटीशन है, ये है, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाता है। तो फिर वैसा मॉलिक्यूल पर काम करना वेदर वर्थ है या नहीं है R&D में, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ बिग क्वेश्चन। सो द बिजनेस डेवलपमेंट टीम पहले तो इनोवेटर आइडेंटिफाई कर ले जिसका अच्छा मार्केट है, उसके बाद में मार्केट में और कौन से प्लेयर्स हैं और इंडस्ट्री में कौन से लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका एक सर्वे किया जाता है और उसके बेसिस के ऊपर में हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप कर रहे हैं, हमको उस मार्केट का कितना शेयर मिलता है ये डिटरमाइन किया जाता है। तो जब हम शेयर डिटरमाइन करते हैं तो शेयर डिटरमाइन करते वक्त ही हम ये पूरा हिसाब रखा जाता है कि इसमें कितने लोग जेनेरिक्स बनाकर आएंगे और वो जेनेरिक्स का क्या फेट होगा, और अगर इतने जेनेरिक्स को अप्रूवल मिलता है तो आपका जेनेरिक मार्केट में आके कितना शेयर मिलेगा, और वो एक सब्सटेंशियल शेयर होना चाहिए पूरे कॉम्पिटिटर्स को रखकर, जो कि आपको मिलना चाहिए, तो ही वो वर्थ है जेनेरिक वर्जन में जाने के लिए। अगर if at all there are too many players और many people are working on that molecule, then ऐसे molecule पे फायदा कम होता है काम करके, क्योंकि वहां आपको कुछ मिलता ही नहीं है। तो आइडियली अगर एक इनोवेटर है मार्केट में और अगर सर्वे के बेसिस पे और आपके अंदाजे पे और आपके बिजनेस डेवलपमेंट पर्सनल के कैलकुलेशन पे, उस पे इफ देयर आर 4 to 5 प्लेयर इन मार्केट जो कि आगे आने वाले हैं कंपटीशन में जेनेरिक वर्जन बना के, तो स्टिल ये एक गुड कैंडिडेट होता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैंडिडेट होता है। तो जब एक बार ये मिल जाए कि अच्छा मार्केट है, और अच्छा मार्केट क्या है, तो मेरे हिसाब से एनीथिंग अबव 5 मिलियन का अगर मार्केट आपको मिल रहा है शेयर, अगर इनोवेटर बिलियंस में है और आप उसमें से 5 मिलियन 10 मिलियन का मार्केट मिलता है, तो दैट इज अ गुड। एनीथिंग बिलो 5 मिलियन इज नॉट वर्केबल। तो ऐसा प्रोडक्ट फिर ये होता है। अब अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि मार्केट भी अच्छा मिल गया है, आपको लग रहा है कि कम शेयर्स है या कम कॉम्पिटिटर्स है और आपको अच्छा शेयर मिल भी जाएगा, लेकिन वो शेयर मिलने के बाद भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये भी अगेन एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। क्योंकि जेनेरिक इंडस्ट्री का ऐसा है कि प्राइस जो भी है हर दिन के हिसाब से प्राइस रिड्यूस होती है, एंड सो एज एंड व्हेन द प्राइस गेट रिड्यूस्ड आपका उतना कंपटीशन ये होता है और आपका उतना मार्केट लॉस होता है। तो बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपका सब रॉ मटेरियल, कॉस्टिंग, फैसिलिटी जिसमें बन रहे हो उसके चार्जेस और एक्सिपिएंट के चार्जेस, ये सब मिलाकर भी आपको ग्रॉस मार्जिन शुड बी ऑलवेज अबव 50%। अगर आपको 50% प्रॉफिट मिलता है तो देन दैट बिकम्स अ आइडियल कैंडिडेट। कुछ केसेस में 30-40% प्रॉफिट ऑल्सो गिव्स एन आइडियल केस, बट दैट डिपेंड्स, बट एटलीस्ट 50% प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलना चाहिए। अगर 50% प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन आपको मिल रहा है तो देन इट इज ए गुड कैंडिडेट फॉर द ड्रग। तो अब ये तो हो गया कि इनोवेटर
का इवैल्यूएशन कर लिया, बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर दिया, ये कर दिया और लाकर R&D को दे दिया कि आपको डेवलप करना है, तो अभी R&D को डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट अप्रूव होने से पहले डेवलपमेंट के लिए R&D का भी कुछ एक्टिविटीज होता है जो देखा जाए। तो इसमें पहली तो चीज ये होती है कि जो भी प्रोडक्ट है जो मार्केटिंग टीम ने और आपकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने सेलेक्ट किया है, तो उसमें R&D को सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट फीजेबल है क्या बनाना, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें वेदर इट इज फीजेबल और नॉट, वो आपके R&D में रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स में बन सकता है क्या, वो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। अगर वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि जिसको कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स वो लग रहे हैं, तो फिर वो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। तो फिजिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि वो बन सकता है या नहीं। R&D में बनाने के अलावा आपका प्लांट भी उतना इक्विप्ड होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को जो भी मशीनरीज वो लग रहे हैं वो अवेलेबल हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मशीनरी अवेलेबल ना हो, बट हो सकता है कि मशीन आप खरीद सकते हो, तो देन दैट द प्रोडक्ट बिकम्स फीजेबल। तो पहले एक R&D फिर एक इवेल्युएट करेगा कि ये R&D की इस फैसिलिटी में सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है डेवलप करने के लिए। अगर सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है तो देन इट इज ओके टू गो अहेड, बट स्टिल इट इज नॉट ओके टू गो अहेड एज आई सेड, क्योंकि चलो अब फिजिबल भी है कि प्रोडक्ट है, हो सकता है आयर टैबलेट हो, सस्टेन रिलीज टैबलेट हो, तो बेसिक मशीनरीज तो हर R&D में हर प्लांट में होती है, या कोई एक आधा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट रहा हो, कुछ नया टाइप का डोसेज फॉर्म भी रहा हो, तो आप वो डोसेज फॉर्म भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप उतना उसमें मशीनरीज में उनमें उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो, तो वो भी कर सकते हो। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट थर्ड थिंग, डायरेक्टली आप इनोवेटर का जेनेरिक वर्जन ऐसे उठा के बना सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं बना सकते हो? उसके पीछे एक रीजन है कि आपको एक चेक करना होता है कि पेटेंट का क्या स्टेटस है। तो प्रोडक्ट स्टार्ट कर लेने से पहले एक आपको थरो सर्च ऐसी भी करनी होती है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या पेटेंट्स अवेलेबल है। ये आपको ऑरेंज बुक में मिलता है US FDA के साइट पे। ये मैं जब लिटरेचर सर्च में जाऊंगा तो पेटेंट्स का IP के रिलेटेड में मैं उस स्टेज पे बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले ये देखा जाता है कि पेटेंट्स का क्या स्टेटस है। तो जैसे मैं बताऊं, अब ऑब्वियसली इनोवेटर ने 20 साल काम करके प्रोडक्ट मार्केट में लाया है, तो ही विल हैव टू सिक्योर हिज प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को सिक्योर करने के लिए इनोवेटर ऑलरेडी अपने पेटेंट्स लगा देता है। तो बहुत ही रेयर केस में, बल्कि या इट इज इम्पॉसिबल कि देयर इज एन इनोवेटर विच इज नॉट हैविंग पेटेंट। मैक्सिमम टाइम होता है, या फिर पेटेंट जब नहीं होता है तो ऐसा होता है कि इनोवेटर 20 साल पुराना हो गया, 20 साल मार्केट चल लिया, उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, और पेटेंट एक्सपायर हो गया और उसमें मार्केट में भी दम नहीं बचा, तो दैट्स वाई वो खुला हो जाता है कि आप वो पेटेंट एक्सपायर हो गया तो नो पेटेंट। लेकिन अगर आपको मार्केट में होना है, अच्छा मार्केट चाहिए, कॉम्पिटिटिव मार्केट चाहिए, तो उस केस में 95 to 99% चांसेस है कि पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होती है। तो क्या आप फिर उसको जा सकते हो या नहीं जा सकते हो? तो आप ऑफकोर्स जा सकते हो, पेटेंट रहा तो वहीं R&D को पहले ये प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए ये इवैल्यूएशन भी करना होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट है या जो भी पेटेंट है वो पेटेंट बाईपास हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक चीज, अगर ड्रग मॉलिक्यूल काफी पुराना है, अगर 20 साल हो गए ऑलरेडी उसको आते हुए और उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वहां आपको पेटेंट बाईपास करने की जरूरत नहीं होती। या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप 2022 में हो और 25 में पेटेंट एक्सपायर हो रहा है, आप आज से आपका काम शुरू कर डालो तो 25 तक वो पेटेंट हो सकता है एक्सपायर हो जाए। तो उस केस में आपको पेटेंट कॉपी कर लेने में भी चल सकता है, या आप इजी गोइंगली जा सकते हैं। इस टाइप के प्रोडक्ट्स को बोलते हैं कि पैरा 3 फाइलिंग बोलते हैं, जहां पर पेटेंट या तो एक्सपायर्ड हो गया है या पेटेंट ना हो, तो उस केस में तो ये तो एक सिंपल चीज हो जाती है। लेकिन फिर अगेन वही है कि पेटेंट नहीं है, पेटेंट इजीली ये नहीं हो रहा है, मतलब एक्सपायर हो चुका है, ये हो चुका है, तो ऑब्वियसली 20 साल हो गए, मार्केट भी चले गया है, तो उतना वो चैलेंजिंग नहीं होता या उसका उतना मार्केट नहीं होता, बट कुछ केसेस में होता भी है। तो दैट डिपेंड्स। बट अगर पेटेंट है और पेटेंट अप्रूव्ड है और सपोज इनोवेटर आया है 2020 में और उसका पेटेंट भी आया 2021 में या 19 में आया, तो उसको 20 साल बोले तो यहाँ से 2040 में 2039 में
वो पेटेंट एक्सपायर हो रहा, तो इन दैट केस क्या करना होता है? तो इन दैट केस R&D को इवेल्युएट करना पड़ता है उस पेटेंट को, और उस पेटेंट को आप बाईपास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये टोटली ये चीज डिटरमाइन करेंगे कि वो प्रोडक्ट को आप कितना आगे तक लेके जा सकते हो। तो जब आप पेटेंट इवेल्युएट करते हो, तो अगेन ये जब मैं पेटेंट्स पे आएंगे हम डिटेल में, जब आईपी डिस्कस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि पेटेंट को किस हिसाब से देखा जाता है, किस हिसाब से बाईपास किया जाता है, उस टाइम पे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए कि पेटेंट, कुछ टाइप के पेटेंट ऐसे होते हैं कि जिसके क्लेम्स होते हैं, पेटेंट में 2 टाइप के क्लेम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लेम्स और डिपेंडेंट क्लेम्स। तो उसमें से इंडिपेंडेंट क्लेम्स ऐसा होता है कि जो आपको बाईपास ही करने होते हैं, और डिपेंडेंट क्लेम अगर आपने इंडिपेंडेंट बाईपास कर लिया तो डिपेंडेंट हो ही जाता है बाईपास। तो कुछ पेटेंट ऐसे होते हैं जिनके डिपेंडेंट क्लेम्स बाईपास हो सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट आप कर सकते हो। बट अगर कभी इनोवेटर ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया क्लेम्स को, और जहां पर फिर जाके आपको स्कोप ही ना रहे कि आप पेटेंट को बाईपास करते हो, तो वैसा प्रोजेक्ट करने में मतलब ही नहीं आता है। तो इनोवेटर के ऐसे बहुत टाइप के क्लेम्स होते हैं, जो कि जब मैं पेटेंट्स में जाऊंगा उस टाइम पे डिस्कस करूंगा। लेकिन एक जैसा एग्जांपल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मैंने किया था बहुत साल पहले, जिसमें इनोवेटर ने आपके प्लाज्मा प्रोफाइल में कितने घंटे में कितना ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए प्लाज्मा पे, उसको ही क्लेम कर डाला। अब वो जो कॉन्सेंट्रेशन है, दैट कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली आगे जाके आपको थेरापेटिक एक्टिविटी या जो इंडिकेशन है उस पर हेल्प करता है। तो अगर आप वो कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड में आप जा नहीं सकते हो, आपका मॉलिक्यूल जा नहीं सकता है, तो उसका फिर थेरापेटिक एक्शन ही नहीं होगा, तो वो पेटेंट आपसे बाईपास ही नहीं होगा। या आप बाईपास कर डालो और अलग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन करो तो या तो टॉक्सिक हो जाएगा, अगर आपका ज्यादा रिलीज हो गया तो, और कम रिलीज हुआ तो वो सब ऑप्टिमल इफेक्ट देगा, तो वैसे केस में बाईपास ही नहीं हो सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेटेंट बाईपास ना हो। तो वो इस स्टेज पे ही, जैसे मैं आपको बता रहा था कि R&D इसी स्टेज के ऊपर में वो पेटेंट को चेक करना होता है, वो बाईपास हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर बाईपास होता है तो वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो वो प्रोजेक्ट आगे वाइबल नहीं होता है। और यही R&D का रोल होता है, डिटरमाइन करने के लिए 2 चीजें, पहले वेदर वो फीजिबल है या नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, हमारे पास वो एक्सपर्टाइज है या नहीं है, सेकंड चीज वो पेटेंट बाईपास करना पॉसिबल है या नहीं है। और इसके अलावा और एक चीज होती है कि चलो आपने बहुत इजीली पेटेंट बाईपास कर लिया, ऑफकोर्स देयर आर मेनी पेटेंट जो कि बहुत इजीली बाईपास भी हो जाते हैं। तो आपने बाईपास तो कर लिया, लेकिन बाईपास करने के बाद भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनोवेटर आप पे केस कर डाले, इंफ्रिंजमेंट का केस कर डाले और लिटिगेशन हो जाए। तो आपको लिटिगेशन लड़कर आपको इससे बाहर निकलना पड़ता है। एंड अगेन अगर लिटिगेशन आपको करना है तो लिटिगेशन कम्स आउट एज अ वेरी कॉस्टली एक्टिविटी, और हर ऑर्गेनाइजेशन शायद अफोर्ड ना करे या करना चाहे, ये डिपेंड करता है। तो आपको फिर वो भी समझना है कि आपको अगर पैरा 4 में जाना है तो आपको पैसा भी उतना खर्चा करना है उस पेटेंट को ये करने के लिए। आप लैब में उसको बाईपास कर लोगे, बट आपको लिटिगेशन फेस करना है, लिटिगेशन फेस करके उसको निकालना इज टफ थिंग, कि अपने हक में फैसला लेना, दिलवाना। वो हो भी गया तो यू हैव टू स्पेंड क्रोर्स ऑफ मनी फॉर दिस लिटिगेशन। तो वेदर वो प्रोडक्ट इतना वर्थ है कि आप उसके लिए लिटिगेशन में जाना चाहो या नहीं चाहो, दैट अगेन बिकम्स ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये हो गया R&D का रोल। तो अब बेसिकली ये पूरा जब हो जाएगा, R&D बोल देगा कि चलो ठीक से बन सकता है, एनालिटिकल साइंटिस्ट भी देख लेगा कि मेथड भी ठीक है, आपकी फैसिलिटी भी ठीक है, आपके पास डिजायर्ड इक्विपमेंट है, मशीन्स है, हर चीज है, तो आपका प्रोडक्ट ये बन सकता है। तो इसका फिर एक अप्रूवल होता है। तो यूजुअली इसका एक कोई फॉर्म होता है जो कि मार्केटिंग टीम भरती है, और इट इज साइंड बाय स्टेक होल्डर्स। कभी ओनर्स होते हैं, कभी ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सीनियर मोस्ट होते हैं, जैसे CSO, MDs, और ये लोग उसका अप्रूवल देके एक फॉर्म अप्रूवल होता है, और वो फॉर्म फिर भेज दिया जाता है R&D को, आइदर डायरेक्टली या थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो फॉर्म पहुंच जाता है R&D में, और फिर वहां पर से R&D का एक डेवलपमेंट शुरू होता है, और उस डेवलपमेंट के बाद से फिर एक्चुअल एक्टिविटी शुरू होती है। तो अब डेवलपमेंट बोले तो फॉर्म आ गया, ये आ गया, तो तुरंत कल से डेवलपमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। उसके अलावा फिर लाइसेंसिंग की एक्टिविटीज वो भी होती है। आप ऐसे ही
इंडिया में रहते हुए इंडिया के जो भी एफडीए है उसको इन्फॉर्म किए बगैर, उससे रिलेवेंट परमिशंस लिए बगैर आप अगेन वो प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो आपका ये तो हो गया प्रोडक्ट सिलेक्शन। प्रोडक्ट सिलेक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट आ गया, फॉर्म आपका साइंस होके R&D पहुंच गया। तो अब एक बार R&D पहुंच गया तो अब आपको क्या करना है, तो लाइसेंसिंग करना है। लाइसेंसिंग करना है, उसके बाद में लिटरेचर सर्च होगा, फिर डेवलपमेंटल ट्रायल्स होंगे। तो अब ये सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स आगे 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 देखेंगे। तो कल मैं पहले चीज आपको सबसे जो बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि लाइसेंसिंग कैसी होती है, किस टाइप की लाइसेंसिंग होती है, आपको क्या क्या लाइसेंसिंग करना होता है। एंड अगेन वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे M.Pharm कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आप तो वहां पर आप बहुत सारा काम कर लेते हो, वहां कोई आपको लाइसेंस नहीं लगता, कोई ज्यादा परमिशंस नहीं लगते हैं। बट अगेन जब आप F&D में काम कर रहे हो तो आपका तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, आप प्रोडक्ट को बायोइक्विवेलेंट कैसे बना रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन उससे पहले भी लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, लॉट ऑफ परमिशन, लॉट ऑफ लाइसेंसिंग आर रिक्वायर्ड, जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता नहीं हुआ तो ऐसा होता है कि अगर आप लाइसेंस अप्लाई करने में आपने टाइम कर दिया तो यू मिस, और आपका महीनों लाइसेंस में ही फिर मिस हो जाए। तो लाइसेंसिंग कौन सी होती है, क्या लाइसेंसिंग होती है, उसको क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसको आपको क्या डाटा सबमिट करना पड़ता है, ये वी विल स्टार्ट विथ अवर डिस्कशन टुमारो। और उसमें फिर हम देखेंगे कि लाइसेंसिंग करने के बाद में आगे क्या होता है। तो एज ऑफ नाउ आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो उससे पहले एक R&D का इवैल्यूएशन होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता है पेटेंट को बाईपास करते हुए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ये। सो दैट फॉर्म्स द हार्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट. So I hope that you understood all what I have said today, and from tomorrow onwards we will move out with the licensing activity, और उसके बाद में developmental trials and all maybe ये तो as I committed every day 15 to 20 minutes we will discuss. So thank you for watching, and there is a quite a good response. Many people are watching the videos, and जैसे I said that even 10 people are able to watch, and if they are able to understand anything out of my lectures, or if they are able to gain, I will continue this activity till the time it is possible. तो काफी लोग देख रहे हैं, आई थिंक गुड रिस्पॉन्स हो रहा है। मुझे पर्सनल में भी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो 1 by 1 मैं दूंगा। और जब तक भी आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहेंगे और आप पूछते रहेंगे और आप इन्वॉल्व रहेंगे, till that time I will keep on delivering this lecture. So thank you very much, thank you for your participation, thank you for subscription, thank you for liking the videos, and thank you for commenting, thank you for giving the suggestions, thank you for suggesting improvements in the lecture, जो कि मैं 1 by 1 implement करूंगा। तो thank you, thanks a lot, good night, and let us meet tomorrow again with a new chapter. Thank you very much.